हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी जंगीरा फ्रॉम कैनन फाउंडेशन और मैं आप सभी व्यूअर्स का यहाँ पे स्वागत करती हूँ। और आज हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर जो कि दिल्ली एनसीआर में बहुत ही फेमस और बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर सलील जैन। यस, डॉक्टर सलील जैन जो है प्रेजेंटली ही इज वर्किंग विद फोर्टिस गुड़गांव एज अ डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी। So welcome doctor here. Thank you very much. So doctor, we have certain queries and concerns जो मैंने viewers की queries आपके सामने लेकर आई हूँ कि बेसिक जो किडनी डिजीजेस है उनको अवेयर कराएं ताकि जो एक वो खौफ लेके चलते हैं उससे थोड़ा सा उनको रियायत मिले। So my first question is like what are the common kidney diseases? So kidney disease पहले, if you see that in around 20 years back, there were not too many kidney diseases and there were not too many hospitals which were treating kidney problems and issues, and there were not too many kidney patients also. But as these last 2 decades, we have seen that there has been a surge of diabetes and high blood pressure. The management of diabetes and high blood pressure has been good. The doctors have been doing a good job and the people are surviving for longer years. The average lifespan has gone up by around 10 years. So now what we are seeing today is an epidemic of kidney disease, and that is due to the longevity of these patients of diabetes and hypertension, and it's related to the complications of diabetes and blood pressure that we are seeing the kidney disease. So it's directly correlated. Along with this diabetes and blood pressure, there is obesity, which is an independent factor for kidney disease. And when there is diabetes, blood pressure, heart disease, obesity, when all these 3 or 4 things get combined in an elderly age group, yes, the chances of getting a kidney disease become high. Okay. So you can say diabetes, blood pressure, obesity are the most common reasons. Apart from this, if we see young population, they are also turning to be hypertensive blood pressure patients. They are now having diabetes at as early as in 30s and 40s. And the other thing that we have seen recently is that the availability of over-the-counter medications, especially the painkillers and the bodybuilding protein powders and all those things, if they are used judiciously, yes, they can be helpful, but without any guidance, if they are being used, yes, they can be harmful, and we have seen patients with permanent kidney damage because of these things. So these are the most common reasons, and the other things are like kidney stones, urine infections, then a group of disease called glomerulonephritis. These are immune system mediated kidney disease, where our immune system, which is actually supposed to protect us, has a damaging effect on our own body. Okay. And these damage the kidneys. So these are called autoimmune diseases which can damage the kidneys. That's also an important contributor to the cases. So my next question is कि क्या सिम्टम्स और क्या कारण रहते हैं जिसकी वजह से किडनी डिजीज होती हैं? ऑल्दो आपने शेयर किया ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे? So जैसे मैंने बताया कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, ऑटो इम्यून डिजीजेस और कुछ हेरिडिटरी डिजीजेस होती हैं जिसमें किडनी में सिस्ट बन जाते हैं जिसकी वजह से किडनी खराब हो सकती है। और यूजुअली कई बीमारियों की वजह से, जैसे कोई इन्फेक्शंस हो जाए, उसमें भी किडनी डैमेज हो सकती है। यूरिन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनमें भी अगर बार बार होता है यूरिन इन्फेक्शंस, उसकी वजह से किडनी डैमेज हो सकती है। पेशाब की रुकावट, जैसे किसी को स्टोन हो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, स्पाइन में प्रॉब्लम हो और यूरिन अच्छी तरह से बह नहीं पा रहा है, उसमें हो सकती है। बच्चों में कई कंजेनाइटल कंडीशंस होती हैं जिसमें यूरेथ्रा वगैरह में वॉल्व होते हैं, उसकी वजह से यूरिन का फ्लो अच्छा नहीं होता, बैक प्रेशर की वजह से किडनी खराब हो जाती है। तो ये कई रीजंस हैं, बट मेनली तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर ही टॉप में है और ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं टॉप पे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि क्या सिम्टम्स होते हैं, जी, तो
ज़्यादातर पेशेंट्स जो डायबिटीज़ के हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, उनमें देखा जाएगा कि उनके पेशाब में प्रोटीन लीकेज होता है, तो पेशाब में झाग आने लगता है जब वो पेशाब करते हैं। तो एक सिम्टम वो होता है। और जो दूसरा कॉमन रीज़न है सिम्टम है वो है पैरों में सूजन। सुबह जब वो उठेंगे तो आँखों के अराउंड पफीनेस हो जाती है, सूजन आती है, और वो जैसे जैसे दिन ढलता जाता है तो आँखों की सूजन और पफीनेस कम हो जाती है, पैरों में बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर किडनी एडवांस फेलियर में चली जाती है तो उनका खाना पीना कम हो जाता है, हर चीज़ का नौशिया, वॉमिटिंग जैसी सेंसेशंस आती हैं, खाने का मन नहीं करता है, मुंह में ख़राब टेस्ट रहता है, स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, इचिंग होने लगती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। दूसरे, यूरिन पास होने का जो अमाउंट है वो कम होने लग जाता है, और जो एनर्जी लेवल है वो लोगों को लगता है कि नहीं, वो हमेशा थके थके से और सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, फैटीग हो जाता है, एनर्जी लेस हो जाते हैं ये लोग, और साथ में वेट लॉस होने लगता है क्योंकि आप खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं। तो ये एक जनरल सी है, बट एक ऐसी, और इसमें अगर वो देखें कि मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स विल हैव हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो। और अगर वो डायबिटिक है तो उनकी शुगर एक्चुअली लो होने लगती है किडनी फेलियर पेशेंट्स में। तो अगर एक पेशेंट डायबिटीज़ का है जिसकी शुगर स्टेबल चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, और वो सडनली उन्होंने दवाएं चेंज नहीं की हैं और उन्होंने नोटिस करने लगा है कि उनकी शुगर्स अब ज़्यादा लो होने लगी हैं, बार बार लो हो रही हैं, तो उन पेशेंट्स में ये किडनी फेलियर के लिए चांसेस हैं, उनको टेस्ट कराना चाहिए। और एक ऐसी भी है, जैसे अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 20% ऐसे भी हैं जिनको नॉर्मल यूरिन आएगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनको किडनी की प्रॉब्लम है। एंड दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट एंड अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स जिनका हम बहुत लेट जाके पता चलता है कि इनकी किडनी खराब हो गई है। बट 80% ऑफ द पेशेंट्स वी कैन एक्चुअली गेट देम एट एन वेरी अर्ली स्टेज, जहाँ पे हम इसे रिवर्स कर सकते हैं। राइट। सो लाइक द चांसेस आर कि हम बड़े लोग एज एन एडल्ट तो नोटिस कर सकते हैं कि हमारी बॉडी एक सिम्टोमेटिक है, कि बता देती है कि यूरिन हेजी है, या फटीग हो रही है, या हमारे को पफिनेस हो रही है, या पैरों में सूजन है। बट व्हाट अबाउट किड्स? आजकल मैंने देखा कि बच्चों में भी ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, किडनी फेलियर हो रहे हैं, और उसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या ट्रीटमेंट है आज मेडिकल फील्ड में? बच्चों में यूरिन इन्फेक्शंस, और अगर देखा जाए तो ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है, और उसकी वजह से आप एज यंग एज 10 से 12 साल के बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर देखा जा रहा है। और तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि इनके वेट पे थोड़ा सा ध्यान रखें, उनकी डाइट पे ध्यान रखें, क्योंकि आजकल जो फास्ट फूड वगैरह है उसमें काफ़ी उसकी वजह से ओबेसिटी का इंसिडेंस बढ़ रहे हैं। तो और तीसरा जो हो रहा है कि आजकल एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं इनकी। आप देखेंगे कि प्लेग्राउंड्स में ये बच्चे दिखते ही नहीं हैं, दे आर ऑलवेज विद देयर मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर पे बैठते हैं, और इन एक्टिविटी की वजह से उनका वेट और ओबेसिटी बढ़ रही है, विच इनडायरेक्टली एक्चुअली डज इम्पैक्ट ऑन ओवर हेल्थ एंड किडनीज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शंस हो सकते हैं। प्लस इस एज ग्रुप में कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं कि जहाँ पे ये पेशाब की जो नली है उसमें वॉल्व्स बन जाते हैं जो बैक प्रेशर देते हैं यूरिन का किडनी के ऊपर, उसकी वजह से दिक्कत आती है। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर किसी बच्चे का वेट ज़रूरत से ज़्यादा है, उसका ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराइए, यूरिन का एक बारी रूटीन टेस्ट जिसमें हमें पता चल जाए कि प्रोटीन है कि नहीं वो देख लीजिएगा, और तीसरा एक्टिव रखिएगा बच्चों को। राइट। सो डॉक्टर, लाइक देयर इज अ टर्म कि हम मेडिकल फील्ड में एक टर्म है डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। हमारे पॉलीक्लिनिक में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं आजकल की, वो बोलते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट, हम डायलिसिस नहीं करना चाहते, किडनी ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं। तो हाउ यू रिकमेंड कि इंसान को कैसे डिसाइड करना है कि इसको डायलिसिस कराना है या किडनी ट्रांसप्लांट करना है, विच इज़ बेटर? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि ये एक हुआ बना हुआ है टर्म्स का डायलिसिस का, कि जिसको डायलिसिस हो गया वो बचेगा नहीं। ये बिल्कुल गलत धारणा है लोगों में, और एक्चुअली डायलिसिस लोगों की
रक्षा करता है और उनको एक्चुअली जीवन दान देता है। और हाँ, ट्रांसप्लांट भी एक ऐसे ही काम है। ये जब किडनी हमारी हम कहते हैं CKD स्टेज, क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 जब पहुंच जाती है, तब हम कहते हैं कि इस पेशेंट को बाहर से हेल्प चाहिए होगी। जो हमारे शरीर में जहर है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है, उसको करेक्ट हमारी किडनी जो 5-10% काम कर रही है वो मैनेज नहीं कर पाती है। ऐसे में हमें बाहर की एक आर्टिफिशियल मशीन की कई बारी हेल्प चाहिए होती है और उसको हम डायलिसिस मशीन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम शरीर से खून निकालते हैं, मशीन में पंप लगा होता है जो खून को खींचता है, फिल्टर में भेजते हैं उसे, फिल्टर होने के बाद वो साफ खून वापस मरीज को दे देते हैं। कई लोगों की धारणा है कि हर बारी खून चढ़ाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। अगर अच्छी तरह से किया जाए डायलिसिस, प्यूरिफिकेशन है, हाँ, प्यूरिफिकेशन हो जाता है उससे। और ये प्रोसेस हफ्ते में 3 बारी रेगुलरली होना चाहिए। मैं एक बहुत लेमन टर्म में आपको समझाना चाहूँगा कि आप ये समझिए कि एक हमारे किडनी जो है 24 घंटे काम करती है। हम यूरिन पास करते हैं सुबह भी, रात को भी जी। और हफ्ते में 7 दिन हमारी किडनीज काम करती है। ऐसा नहीं होता कि संडे को हमने यूरिन ही नहीं आया, फ्लश आउट करते रहते हैं, किडनी हॉलीडे पे, ऐसा नहीं होता। तो हमारी जो किडनी है नेचुरल, वो 24 आवर्स 7 डेज अ वीक काम करती है जी। अब जिस मरीज की किडनी ये काम नहीं कर रही है, लेस देन 5% है, अब जहर उसके शरीर में भर रहा है, तो हमें एक आर्टिफिशियल चीज चाहिए जिससे ये जहर निकले, और उसका नाम है डायलिसिस की मशीन। राइट। अब आप बताइए उसको कितने घंटे काम करना चाहिए जहर निकालने के लिए, आइडियल रिप्लेसमेंट, तो उसे भी 24 घंटे 7 दिन करना चाहिए काम। बिल्कुल। लेकिन ये हो नहीं सकता पॉसिबल कि एक आदमी उसके साथ चुपका रहे, क्योंकि ये इतनी बड़ी मशीन है। तो इसलिए स्टडीज की गई भाई कम से कम कितना अटैचमेंट रहना चाहिए मशीन के, और उसके लिए पाया गया कि हफ्ते में 3 बार 4-4 घंटे के सेशन अगर कोई ले तो आदमी, जो पेशेंट है, वो सरवाइव कर सकता है और टॉक्सिन्स निकल के ही कैन लीड प्रोबेबली ए काइंड ऑफ अ गुड लाइफ, नॉर्मल लाइफ। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अपनी किडनी निकाल के उस मरीज में बिठा देता हूं, तो वो कितने घंटे काम करेगी उसके शरीर में? 24 घंटे, और वो 7 दिन करेगी। तो रिप्लेसमेंट कौन सी अच्छी हुई? किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि वहां पे वो किडनी जो है 24 घंटे 7 दिन काम कर रही है, और जो डायलिसिस है वो 12 घंटे काम कर रही है। तो दोनों में कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वहां वो जो किडनी है वो कंटिन्यूअसली जैसे आपकी नेचुरल किडनी काम कर रही थी वैसे काम करेगी और जहर को निकालेगी। यहाँ पे जो डायलिसिस का जो मशीन है वो 12 घंटे करेगी, तो बहुत सारा जहर फिर भी आपके शरीर में रह जाएगा। तो उसका इम्पैक्ट आपकी क्वालिटी और कितना आप जिएंगे उस पे डिपेंड करने लग जाता है। तो ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन, और अगर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते तो भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रह सकती है अगर आप डायलिसिस ढंग से और अच्छी तरह से करवाएं। राइट। आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से क्लियर कर दिया कि ट्रांसप्लांट इज अ बेटर ऑप्शन। सो लाइक आई वुड लाइक टू आस्क कि ट्रांसप्लांट के लिए हम किस तरह का एक इंसान तय करते हैं? लाइक एक बच्चा है तो बच्चे के केस में हमें किसकी किडनी दे सकते हैं? अगर कोई एडल्ट है तो हम कैसे किसकी किडनी डिसाइड करेंगे कि वो हेल्पफुल होगी या नहीं होगी? ये कैसे डिसाइड करें? तो किडनी ट्रांसप्लांट एक बड़ा प्रोसेस है और इसमें 2 लाइफ इन्वॉल्व होती हैं, एक तो पेशेंट, दूसरा जो डोनेट कर रहा है। और एज ए डॉक्टर हमारा जो फर्ज रहता है कि हाँ, मरीज को तो ठीक करना ही है, लेकिन जो किडनी डोनेट कर रहा है वो तो मरीज नहीं है, तो हमें उसकी तरफ सेफ्टी के लिए कि उसको कोई हार्म ना हो और हम उसे कहीं मरीज ना बना दें, वो ज़्यादा प्रायोरिटी होती है हमारी। तो हम जब सोचते हैं कि हाँ कौन डोनेट करेगा, तो उसकी सबसे कुछ गाइडलाइंस भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और 18 साल से ऊपर का एज होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए, उसको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक या ऐसी कोई बीमारी ना हो जो उसको फ्यूचर में किडनी पे असर कर दे।
हम कई बार ऐसे मरीज भी लेते हैं जो डोनेट करते हैं, मतलब डोनर्स जिनको ब्लड प्रेशर है और वो एक ही टैबलेट खा रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि उसको माइल्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, उनको ले सकते हैं। बट यूजली प्रेफर करते हैं बिल्कुल हेल्दी इंडिविजुअल हो, और उनका फिर हम असेसमेंट करते हैं जिसमें हम पूरा बॉडी का चेकअप होता है। उसमें उनका साइकोलॉजी की भी देखी जाती है, उनका हार्ट का इवैल्यूएशन होता है, लंग्स का इवैल्यूएशन, लिवर का, दोनों किडनी का इवैल्यूएशन होता है कि ये किडनी कितना काम कर रही है, दूसरी किडनी कितना काम कर रही है। जब हम सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ सारा सिस्टम इनका ठीक है, और अगर हमने इनकी ये किडनी निकाल ली तो ये आज जैसे हैं ये गारंटीड वैसे ही रहेंगे, देन ओनली वी सेलेक्ट हिम एज ए डोनर। और उनको कोई लाइफ लॉन्ग कोई मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं होती है। यस, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, और रेगुलर इंटरवल पे हम उन्हें बताते हैं कि 6 महीना या 1 साल में अपना हेल्थ चेकअप जरूर करते रहे। ये तो हुआ डोनर की बात। और मैं एक ये भी बता दूं, हमारे पास ऐसे भी डोनर्स हैं जो हाइकिंग वगैरह करने चाहते थे, माउंटेनियरिंग करते थे, उन्होंने भी दिया और उसके बाद भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि जो किडनी दे दिया तो उसके बाद उसको लाइफ इजी लेनी पड़ेगी। जो वो एक्टिविटी पहले कर रहे थे दे कैन डू कंटिन्यू एज बिफोर। अब आ जाती है कि पेशेंट को हमें देखना पड़ता है कि उनको ये ऑपरेशन वो झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। उसकी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मेडिकेशंस होती हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस होती हैं, जो इम्यूनिटी को बहुत कम कर देती हैं। तो इन्फेक्शन लगने का चांसेस रहता है, और अगर हम वो दवाइयाँ नहीं दें तो किडनी रिजेक्ट होने का चांसेस रहता है कि ये बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है और वो काम करना बंद कर देती है, बॉडी कहती है इसे बाहर निकालो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट को थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाती है। बट एक अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पे एक्सपीरियंस हैं लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट का, आई थिंक अब मेडिकेशंस हमारे पास इतनी अच्छी आ गई है, मैनेजमेंट एंटीबायोटिक्स का, इन्वेस्टिगेशंस का इतना अच्छा हो गया कि हम रिजेक्शन के चांसेस भी कम कर देते हैं पहले से ही असेसमेंट करके कि इनकी किडनी मैच कर रही है कि नहीं। अब हमारे पास ऐसी भी टेक्निक्स है कि ब्लड ग्रुप नहीं मैच कर रहा है दोनों का, तो भी हम किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पहले नहीं होता था। सो वी हैव मेड अ फेयरली एडवांसमेंट्स इन किडनी ट्रांसप्लांट्स, एंड आई थिंक जिसको भी पॉसिबल हो शुड थिंक अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट। और फैमिली में से डोनेशन की बात होनी चाहिए। दूसरा, अगर फैमिली में कोई डोनर नहीं अवेलेबल है तो डिजीज डोनर्स, जो कई पेशेंट्स होते हैं जो ब्रेन डेड हो जाते हैं, वो कई बार ये डोनेट करते हैं, तो वो उनके ऑर्गन्स के लिए एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है नोटो, उसमें रजिस्टर करें। और हो सकता है कि किसी को ब्रेन डेड पेशेंट है जिनकी फैमिली या उसी आदमी ने या लेडी ने डिसाइड किया हो कि ऑर्गन डोनेशन करना हो, तो उससे हमें ऑर्गन मिल सकते हैं, उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके, सो लाइक आपने बताया कि डोनर कोई भी बन सकता है और देयर इज नो लाइक जेंडर। आई थिंक यस इट मैटर्स कि ब्लड ग्रुप मैच करना जरूरी पहले था, बट अब नहीं है। हम अभी भी प्रेफर करते हैं कि ब्लड ग्रुप मैचिंग हो जाए, हाँ जी, तो अच्छा है। ब्लड ग्रुप मैचिंग वाले नहीं है तो भी हम कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन इट्स वेरी मच पॉसिबल एंड रेगुलरली हम एक्चुअली कर रहे हैं, बिकॉज इनका आउटकम एज कंपेयर टू नॉर्मल ट्रांसप्लांट नियरली इक्वल है। हाँ, शुरू के 1 महीने में थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइल इन पेशेंट्स का बढ़ जाता है, बट लॉन्ग टर्म में दोनों का आउटकम सेम है। एंड ये कोई कि ब्लड ग्रुप नहीं मैच हो रहा है तो हम डायलिसिस पे रहेंगे, आई थिंक वो ठीक नहीं रहेगा। बेटर रहेगा कि अगर ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है तो भी आप ट्रांसप्लांट कराइए, मिल गया तो दैट्स एक्सीलेंट। One of the basic things like which we are hearing every day कि बहुत सारी medicines हैं जो पेन किलर्स हैं या एंटासिड्स खाते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, they lead to kidney damage, ऐसा हम सुनते हैं एज अ लेमैन। तो आप क्या मानते हैं इस बारे में? तो ये बहुत कॉमन है, और जैसे मैंने आपको बताया कि एक्चुअली दिस इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर किडनी डिजीज, स्पेशली as the most of the people are having an advanced age, तो उनके नी में पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो अपने आप पेन किलर्स ले लेते हैं। एंड क्यों ले लेते हैं? क्योंकि इजीली अवेलेबल है। आप जाइए कहीं पे भी आपको
पेन किलर केमिस्ट को बोले वो दे देते हैं आपको। Yes. और यंग जनरेशन में भी देखा जाएगा तो जिमिंग वगैरह या एक्सरसाइज जितने भी करते हैं वो भी काफ़ी ये मेडिकेशंस और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह जुडिशली यूज़ नहीं करते और उसकी वजह से किडनी में डैमेज होती है। Okay. और कई पेशेंट्स हैं जिनके ब्लड प्रेशर एक्चुअली हाई होते हैं। हमारे पास कई बार ऐसे भी पेशेंट आए कि हाँ हमारा सर दर्द हो रहा था और मैं पेन किलर खाता था ठीक हो जाता था, पेन किलर खाया ठीक हो गया। अब जब वो आए हमारे पास कि हाँ पैरों में सूजन आने लगी है तो देखा तो किडनी खराब है, तो उनको हमें पता चला कि ये जो कॉमन सर दर्द हम सोच रहे हैं कि यह माइग्रेन होगा या टेंशन होगा या पेट खराब हो गया इसलिए मेरा सर दर्द हो गया, ये जो रीजंस हैं कई बारी हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम हो सकता है। और ऐसे में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि किसी को भी सर दर्द हो, बॉडी एक हो जो परसिस्टेंट है, मतलब एक बार ही हो गया हफ्ते में या 2 महीने में एक आध बारी हो गया तो दैट्स अंडरस्टैंडेबल, बट अगर किसी को रेगुलरली हफ्ते में 2 या 3 बारी हो रहा है हेडेक और उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है उनको और पेन किलर खाते ठीक हो जाते हैं, लेकिन ये बार बार अगर ऐसे हो रहा है तो उन्हें अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, यूरिन टेस्ट ये जरूर कराना चाहिए। और डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से मिले। बिल्कुल राइट। सो डॉक्टर आई वुड लाइक टू आस्क कि हाइड्रेशन लेवल एक बहुत मैटर करता है किडनीज को हेल्दी रखने के लिए, तो हमारा हाइड्रेशन कितना होना चाहिए, हमें कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में जो हम एक लाइफस्टाइल को हेल्दी कर सकें? सो किडनी जो हमारी है बहुत ही इंटेलिजेंट ऑर्गन है जी। इसमें ये अगर आप 2 लीटर पानी पी ले और आपकी किडनी इंटेलिजेंट है तो आप के बॉडी में से फटाफट आधे घंटे के अंदर आप वॉशरूम में होंगे और यूरिन पास कर देंगी, तो वो सेंस कर लेती है किडनी की मेरे को ज़रूरत नहीं है। अगर यही चीज़ कि आप काम में किसी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि या सोच लो कि आप डेजर्ट में जा रही हैं और पानी नहीं मिल रहा है, तो आपका यूरिन का अमाउंट बिल्कुल कम हो जाएगा कि आपको यूरिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में पानी नहीं है, तो किडनी प्रिजर्व करती है फिर नहीं निकालती है। तो किडनी बहुत इंटेलिजेंट ऑर्गन है और इसी तरह से मैं लोगों को समझाता हूँ अगर आपने बहुत सारा नमक खा लिया तो वो किडनी वो निकाल भी देती है। इसी तरह से हमने कुछ मीठा ज़्यादा खा लिया तो वो शुगर भी निकाल देती है। इलेक्ट्रोलाइट्स का सारा बैलेंस मेंटेन कर देती है कि नारियल पानी पिया पोटेशियम बहुत हो गया, लेकिन अगर किडनी काम करिए वो निकल जाएगा, वो शरीर में नहीं रहेगा। तो मिनिमम जो अमाउंट चाहिए होता है हमारी किडनी को बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं उनको फ्लश आउट करने का, वो करीब 500 से 600 ml के लिए ज़रूरत होता है कि हमें इतना फ्लूइड इनटेक तो मिनिमम चाहिए कि इतना यूरिन बने और वो जहर को निकाल दे। राइट। ये तो लोअर लिमिट हो गई। आप हायर लिमिट, कई लोग सुबह उठ के ही 3 लीटर पानी पी लेते हैं, 4 लीटर पानी पी लेते हैं, उससे मेरे को लगता नहीं है कि कुछ खास फायदा होता है। बट यस, लोगों का बाउल मूवमेंट्स होती हैं उसमें उनको फायदा होता है, साइकोलॉजिकली लगता है कि दे आर क्लींजिंग देमसेल्फ, दैट्स फाइन, बट उससे हार्म नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है फायदा भी नहीं है। तो दिन का जो लिक्विड इनटेक है करीब अगर आप, और ये स्प्रेड आउट रखे कि ये नहीं कि सुबह 2 लीटर पी लिया उसके बाद पानी नहीं पिया, इंटरवल्स में होना चाहिए। या थ्रू आउट द डे एंड नाइट स्प्रेड आउट होना चाहिए जी। और 2.5 से 3 लीटर तक दूध, चाय, पानी सब लिक्विड्स अगर मिलके ले तो मेरे ख्याल से 2 से 3 लीटर तक अगर कर ले तो बहुत ही अच्छा है। एंड लाइक लेकिन हाँ ये सॉरी, अगर आप लिवर के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने 1.5-2 लीटर से ज़्यादा पानी पिया तो वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकता है, लंग में कंजेशन कर सकता है। सो अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो आपको ये 2 से 3 लीटर का जो मैंने फिगर बताया दैट्स गुड, बट अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है तो यू शुड कंफर्म विद योर डॉक्टर कि आपको नमक कम खाना है और लिक्विड्स कम लेना है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है उस केस में हम किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस के लिए क्या रिकमेंड करते हैं, क्या तो करना चाहिए? दोनों केसेस में हम जैसे सब पेशेंट्स के लिए बोलते हैं, और डायबिटीज़ जैसे मैंने बताया सबसे कॉमन रीज़न है किडनी फेलियर का, तो किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और उसके बाद अगर किडनी ट्रांसप्लांट अगर नहीं करवा सकते किसी भी वजह से तो डायलिसिस इज़ अ गुड ऑप्शन। और डायलिसिस में 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है हीमोडायलिसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस होता है खून का डायलिसिस जो
हॉस्पिटल में होता है कि मशीन के साथ आप अटैच होते हैं और वो खींच के हम साफ करके आपको रिटर्न करते हैं एंड यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल। ये मशीन हम आपके घर पे भी सेटअप कर सकते हैं, वो भी आजकल होम डायलिसिस का प्रोग्राम हो गया। दूसरा जो होता है वो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, जिसकी लोगों को थोड़ी जानकारी कम है, जबकि मेरे को लगता है कि वो बेटर तरीका है डायलिसिस का। उसमें हम एक पेट में ट्यूब डाल देते हैं जिसको 3 हफ्ते लगते हैं सेटल होने में, और उसके बाद स्पेशल वाटर बैग्स आते हैं 2-2 लीटर के, जिनको आप सुबह एक ऊपर खूंटे में टांग दिया, ग्रेविटी की वजह से अपनी ट्यूब में जो कनेक्शन करते हैं, तो ये 2 लीटर आपके पेट में पानी चला गया। आपने डिस्कनेक्ट किया, दोपहर तक आप फ्री हैं कि आपको अपने ऑफिस पे जाना है, स्कूल में जाना है, काम करना है, जो भी कीजिए। दोपहर के वक्त आप फिर से बैठेंगे चेयर पे और जो पेट में पानी था उसको एक खाली बैग में ड्रेन करेंगे और एक भरा हुआ 2 लीटर का फिर से भर लेंगे। तो एक निकालेंगे और भरेंगे, इसको एक साइकिल कहते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस की एक साइकिल हो गई कि आपने जो भरा हुआ था 4-6 घंटे से पानी, वो निकाला और फ्रेश भर लिया। ऐसे ही रात को एक बारी और कीजिए। तो दिन में ये 3 या 4 बारी होता है, आधे घंटे का काम होता है। इसमें कहीं पे भी आपको बिजली का, पंप का कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लड से कोई रिलेशन नहीं है, तो बहुत ही सिंपल है कि आपको बस कनेक्शंस करने वेरी क्लीनली। तो ये डायलिसिस आप घर पे खुद से कर सकते हैं, चाहे आप गांव में हो, शहर में हो, पहाड़ पे हो, जंगल में हो, यू कैन स्टिल डू इट बाय योरसेल्फ। ओके। इससे क्या होता है कि जब हमारे पेट में सुबह से दोपहर तक पानी बना रहा है, वो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी यूरिया का, क्रिएटिनिन का, पोटेशियम का वो खींच लेता है, विच यू ड्रेन आउट। तो ये जेंटल डायलिसिस है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लेबोरियस है कि आपको दिन में 3 बारी करना पड़ता है। इसकी एफिकेसी नियरली इक्विवेलेंट है जो आप इन सेंटर हॉस्पिटल में आके खून का डायलिसिस कराते हैं, तो दोनों की एफिकेसी अच्छी है। इसकी एडवांटेज ये है, पेट की डायलिसिस की घर पे कर सकते हैं, टाइम की कोई लिमिट नहीं है। हीमोडायलिसिस में जैसे किसी के साथ आपको जाना पड़ता है कि सफाई, तो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज बिग एडवांटेज ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। वेराज हीमोडायलिसिस में ये एडवांटेज है कि आपको कुछ नहीं करना, आप जाएँ और हॉस्पिटल में डॉक्टर एंड टेक्नीशियंस एंड नर्सेज विल टेक केयर ऑफ यू। सो एक तरह के, तो डिपेंड्स अपॉन द पर्सनैलिटी एंड समटाइम्स द साथ में क्या क्या बीमारियां हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि विच विल बी प्रेफर्ड, खून का डायलिसिस या वाटर का डायलिसिस। सो डॉक्टर, लाइक वी गो फॉर द किडनी ट्रांसप्लांट, तो उसमें हमारा जो है रिकवरी टाइम क्या होता है, और एक इंडिविजुअल के लिए लाइक एक नॉर्मल लाइफस्टाइल अगर हम बात करें कि वो उसके बाद, ट्रांसप्लांट के बाद क्या एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है? बिल्कुल, यही एम होता है किडनी ट्रांसप्लांट का कि जिसने डोनेट किया उसका तो नॉर्मल रहना ही चाहिए, दूसरा जो किडनी को लेता है उसकी हम लाइफस्टाइल नॉर्मल कर दें। तो शुरू का पीरियड जब दवाइयों की स्ट्रेंथ थोड़ा हाई होती है, उस वक्त हम थोड़ा इन्फेक्शन का रिस्क हाई होता है, उस वक्त हम उन्हें बोलते हैं थोड़ा सा पब्लिक प्लेसेस में जाना, लोगों से ज़्यादा मिलना वो कम करें। और ये शुरू के 2 महीने से या 3 महीने तक के लिए होता ही है रेस्ट्रिक्शन। इसके बाद दे कैन गो एंड जॉइन देयर ऑफिसेस, अपने बिजनेसेस, शॉप्स, जैसा भी करना है। फिर भी यस, दे हैव टू बी केयरफुल कि वो मास्क पहने, अपना हाइजीन का ख्याल रखें, कहीं का भी ऐसा खाना ना खा लें जहाँ पे इन्फेक्शन का रिस्क हो, अपना हेल्दी लिविंग स्टाइल करें, वॉकिंग करें, अपना एक्सरसाइज रेगुलरली करें, एंड दे हैव वेरी गुड लाइफस्टाइल। बस ये हेल्दी रूटीन जो है लाइफ का, और मेडिकेशंस टाइम पे लें। करेक्ट। सो व्हाट आर द हेल्थ टिप्स यू वुड लाइक टू गिव आवर ऑडियंस कि वो हमेशा के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप एक्टिव रहें और कम से कम 40-45 मिनट की वॉक एवरी डे करनी ही चाहिए। अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी बेहतर है। मोटापे की तरफ ना जाएं, कोशिश करें कि जितना कम आपका वज़न हो उतना अच्छा रहे। नमक खाने में कम रखें, लिक्विड का इंटेक करीब 2 लीटर का रखें, अगर आपको कोई और हार्ट की या किडनी की या लिवर की कोई प्रॉब्लम ना हो तो। और फास्ट फूड और तली हुई चीज़ों से थोड़ा सा परहेज रखें, और अगर नहीं रख सकते हैं तो उसको कंपनसेट करने के लिए उतनी एक्सरसाइज ज़रूर करें। ओवर द काउंटर मेडिकेशंस कभी कभार ठीक है, बट
on regular basis you must confirm with your doctors. यंग जनरेशन जो है, जो आजकल जिम और बॉडी बिल्डिंग में लगी है, उनको डाइटिशियन और कुछ भी सप्लीमेंट ले रहे हों, इंजेक्टेबल्स, स्टीरॉयड वगैरह, प्लीज़ एक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें. अपने आप ट्रेनर्स वगैरह हेल्पफुल होते हैं, लेकिन आप न्यूट्रिशियनिस्ट से मिलिए, आप डाइटिशियन से मिलिए, हाँ, उनका हाँ, फॉलोअप लीजिए. लीजिए बिल्कुल. और डॉक्टर से भी ये कई इंजेक्शंस देते हैं आजकल स्टीरॉयड्स वगैरह, जी. तो उनसे दूर रहें. राइट. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सलील फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. मैं पूरी कैनवन टीम की तरफ से आपको थैंक्स करना चाहूँगी. थैंक्स टू यू ऑल्सो. और मेरे को अच्छा एक मौका दिया आपने कि ये किडनी के बारे में, डायलिसिस के बारे में और ट्रांसप्लांट के बारे में जो लोगों को थोड़ा सा भय था, वो आपने हेल्प किया मेरे को दूर करने में. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.